The Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. The Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, Act number 47 of the 2023, and date of assent of President is 25th December 2023. This law, Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, substitute the Indian Evidence Act 1872, which law have been substituted by the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Indian Evidence Act has been substituted by the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Act number of 47 of 2023, date of assent 25th December 2023. Date of assent is same for the BNS, BNSS or BSA. What is the purpose to enact or to pass the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023? To consolidate and to provide for general rules and principle of the evidence for fair trial. What is the purpose to pass or to enact the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023? To consolidate and to provide for general rules and principle of evidence for fair trial. Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 divided into the 4 parts, and there are total 12 chapters divided into the 12 chapters. And how many total sections in Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023? 170. Divided into 4 parts, 12 chapters, and there are total 170 sections in the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. By what manner the arrangement of the chapters, classification of the chapters have been made in Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Part first of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, chapter first preliminary, section first and second, 2 sections cover. Part second, chapter second of the Indian Evidence Act, relevancy of the facts, section 3 to 50, and part third of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, on proof, the chapter third of the Indian Evidence Act, facts which need not be proved, section 51 to 53, and chapter Chapter 4 is also covered under the part 3rd of oral evidence, which sections cover section 54 to 55. Then chapter 5th is also covered under the part 3rd of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, of the documentary evidence, section 56 to 93. पार्ट 4 कहाँ है इसका? यस, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके. एंड देन चैप्टर 6 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ oral evidence by documentary evidence, section 94 to 103. Then part 4th of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam commence the production and effect of the evidence, the chapter 7 of the burden of proof, section 104 to 120. Then chapter 8 estoppel, section 121 to 123. Then chapter 9 of the witnesses, section 124 to 139. Then chapter 10 of the examination of witnesses, section 140 to 168. Then chapter 11 of improper admission and rejection of evidence, single section 169. And last the chapter 12 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, repeal
and saving only a single section 170. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो ब्रिटिश टाइम में जो है पारित किया गया था, उस विधि को, उस कानून को, उस संविधि को, उस अधिनियम को जो है इस नए अधिनियम ने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने जो है प्रतिस्थापित किया है। इसके अधिनियम संख्या देखेंगे आप, 2023 का अधिनियम संख्या 47 है। कौन सी तारीख को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को? 25 दिसंबर 2023। कॉमन है ये डेट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों एक ही दिन को जो है अनुमति है वो राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी, 25 दिसंबर 2023। इस अधिनियम को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसको पारित करने का पर्पस जो है वो क्या रहा? निष्पक्ष विचारण या रिजु विचारण जो है उसके लिए साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांत है उनको समेकित करने और उनका उपबंध करने के लिए जो है यह अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 भारतीय संसद के द्वारा जो है वो पारित किया गया। निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांतों को समेकित करने और उनका उपबंध करने के लिए ये 2023 का अधिनियम जो है वो इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांतों को समेकित करने और उनका उपबंध करना। टोटल जो है इस नए अधिनियम को जो है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। कुल 12 अध्याय है इसके अंदर और कुल जो है 170 धाराएं। पुराना जो हमारा एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उससे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स थे। कितने भाग थे? 3 भाग थे। उसमें 11 चैप्टर थे। कितने थे? 11 चैप्टर थे, 11 अध्याय, और उसमें 167 सेक्शंस थे। कितने थे? 167 जो है वो धाराएं थी। इसमें 170 धाराएं, उसमें 11 अध्याय थे, इसमें नए एक्ट में 12 अध्याय, और वो 3 भागों में विभाजित था, ये 4 भागों में जो है वो विभाजित है। ये मोटा मोटा जो है पुराने एक्ट और नए एक्ट का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर्स, सेक्शंस और पार्ट्स, इसका कंपैरिजन हम देख सकते हैं। भाग जो फर्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, उसमें केवल एक ही चैप्टर कवर होता है, अध्याय 1, धारा 1 और 2। क्या टाइटल है उसका? प्रारंभिक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो है भाग फर्स्ट जो है उसमें एक अध्याय कवर होता है, अध्याय 1, और उसमें 2 धाराएं हैं टोटल, धारा 1 और 2 डेफिनेशन की है और एक शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट आदि का है। भाग जो 2 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, इसमें भी एक ही चैप्टर कवर होता है। कौन सा? चैप्टर 2 कवर होता है, और वो किससे रिलेटेड है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है। धारा 3 से लेकर और 50 तक के प्रावधान जो है इस भाग 2 और अध्याय 2 में है वो कवर होते हैं। भाग 3 जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, ये सबूत के विषय में, इसमें है वो अध्याय 3 से लेकर और 6 तक के, अध्याय 3 से लेके और मोस्ट प्रोबेबली अध्याय 6 तक कवर होंगे इस भाग 3 के अंदर। सबसे पहले आप देखेंगे अध्याय 3 जो है, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, धारा 51 से लेकर और 53 तक। अध्याय 4 ये भी इस भाग 3 में कवर होगा, मौखिक साक्ष्य के विषय में 2 धाराएं हैं इसमें, धारा 54 और 55। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, धारा 56 से लेकर और 93 तक, ये भी भाग 3 में कवर होती है। और अध्याय 6 जो है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, धारा 94 से लेकर और 103 तक के प्रावधान इसमें कवर होते हैं। इसके बाद भाग 4 चालू होगा, 104 से धारा 104 से लेके और लास्ट तक 170 तक, ये सारे जो है चैप्टर्स इसके बाद वाले चैप्टर 8 to 12 और सेक्शन 104 to 170, ये सारा पार्ट 4 के अंदर भाग 4 में कवर होगा। सबसे पहले भाग 4 में आप देखेंगे, भाग 4 का टाइटल क्या है? सबूत का प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव। अध्याय 7 जो है 7 से लेकर 12 तक कवर होते हैं इस भाग 4 में।
अध्याय 7 जो है सबूत के भार के विषय में, धारा 104 से लेकर 120 तक प्रावधान है इसमें। अध्याय 8 विबंध का प्रावधान है इसमें, धारा 121 से 123। अध्याय 9 साक्ष्यों के विषय में, धारा 124 से 139। अध्याय 10 साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में, धारा 140 से 168। अध्याय 11 साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में, एक ही धारा है इसमें, धारा 169। और लास्ट जो अध्याय 12 इसमें भी एक ही धारा है, निरसन और व्यावृत्ति, धारा 170। तो इस तरीके से ये जो नया एक्ट है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसमें टोटल 170 धाराएं हैं, 12 अध्याय है और 4 भागों में यह एक्ट जो है वो विभाजित है। सब्जेक्ट ऑफ एविडेंस is the subject of concurrent list. Subject of evidence is covered under the concurrent list of the 7th schedule of the Constitution, and specifically it covered under the entry number 12 of the concurrent list. There are 3 lists specified in the 7th schedule of the Constitution: union list, state list and concurrent list. This subject of evidence covered under the concurrent list, and in entry number 12, that this subject fall under the concurrent list of the 7th schedule of the Indian Constitution. What is the nature of the Evidence Act? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, what? BSA. What is the nature of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम or the law of evidence? It is not exhaustive in nature. भारतीय साक्ष्य अधिनियम is not an exhaustive law in respect of the subject of evidence. The certain provision may be found in भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, may be Banking Evidence Act 1891 or the other laws. This भारतीय साक्ष्य अधिनियम is lax for law of the place of action be applicable. Another nature of the BSA, it has the retrospective effect. The old law, Indian Evidence Act, has retrospective effect. So similarly, the new law may be a retrospective effect, because it is the procedure law, the part of the procedure law, and procedure law may be implemented from retrospective effect, and it is adjective or procedure law, the part of the procedure law, and also known as the adjective law. What are the fundamental principles of the law of evidence? What are the fundamental principles of the law of evidence? There are 3 fundamental principles of the law of evidence. First, evidence must be lead regarding the existence or non-existence of the fact in issue. Second, best evidence should be produced before the court. And third one, hearsay evidence should not be admissible. Should not be produced, should not be adduced, should not be admissible. These are the 3 basic principles, fundamental principles of the law of evidence. Evidence must be lead regarding existence and non-existence of fact and issue. Best evidence should be produced before the court in any circumstances, and hearsay evidence should not be admitted. साक्ष्य का जो विषय है ये संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची में भी ये प्रविष्टि संख्या 12 में कवर होता है। जब हम संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो 3 प्रकार की, संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो 3 प्रकार की सूचियां हमें पढ़ने को मिलती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट है, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में कवर होता है साक्ष्य का विषय, और समवर्ती सूची में भी जो है एंट्री नंबर 1 to 47 में ये कहाँ फॉल होता है? प्रविष्टि संख्या 12 में। 13 में क्या है? सब्जेक्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन एंड लिमिटेशन। साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य विधि जो है इसकी प्रकृति क्या है? साक्ष्य अधिनियम की या साक्ष्य विधि की नेचर क्या है? नेचर के बारे में हम 3-4 बातें कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये साक्ष्य से संबंधित जो है संपूर्ण विधि नहीं है, एविडेंस से रिलेटेड ये एग्जॉस्टिव लॉ है वो नहीं है,
कुछ प्रावधान इसके एडिशन में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिल सकते हैं, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 में मिल सकते हैं, और किसी दूसरे लॉज में भी, सीपीसी एटसेट्रा में भी अब वो मिल सकते हैं। ये जो है साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य से संबंधित विधि, ये कैसी है? ये देशीय विधि है, लेक्स फॉरी है। ये जहां कार्रवाई की जानी है या की गई है उस स्थान पर साक्ष्य से संबंधित जो प्रवर्त विधि है वो लागू होगी। इसका कैसा प्रभाव रहता है? सामान्यतः साक्ष्य अधिनियम का या साक्ष्य से संबंधित जो विधि है उसका भूतलक्षी प्रभाव रहता है। भविष्यलक्षी प्रभाव तो हर विधि का है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या नहीं, इस विधि का भूतलक्षी प्रभाव भी है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये 2023 में लॉ पारित हुआ है। इसको जो है 2023 से पहले इनिशिएटेड जो प्रोसीडिंग्स है उनके बारे में भी इस नए एक्ट के प्रोविजन लागू हो सकते हैं। और ये कैसी विधि है? वेदर इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ? नो, इट इज अ प्रोसीजर लॉ। ये जो साक्ष्य विधि है ये क्या है? ये प्रक्रियात्मक विधि है, ये सार्वजनिक या मौलिक विधि नहीं है। The law which creates the rights and obligations of the parties is known as substantive law. ऐसी विधि जो व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों का सृजन करती है वो क्या कहलाती है? वो सार्वजनिक विधि कहलाती है, वो मौलिक विधि कहलाती है। ये जो है लॉ है, एविडेंस एक्ट जो है, ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, इट इज कंसर्न टू द प्रोसीजर। ये जो है प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए ये क्या है? प्रोसीजरल है वो लॉ है, ये प्रक्रियात्मक है वो विधि है। साक्ष्य विधि के मूलभूत सिद्धांत क्या है? 3 मूलभूत सिद्धांत है साक्ष्य विधि के। पहला, साक्ष्य विवादकों के विषय में होना चाहिए या विवादित विषय के अस्तित्व या अनअस्तित्व से संबंधित होना चाहिए। सेक्शन 5 जो है पुराने एक्ट का, अभी नए एक्ट में सेक्शन नंबर चेंज हो गए इसके, देखना एक मिनट। ये 3 देखो एक बार सबसे पहले तो टाइटल बता दो आप तो सेक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, ये 3 है नए एक्ट में। सेक्शन 3 धारा जो 3 है उससे कंसर्न है पहला प्रिंसिपल, एविडेंस मस्ट बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट। साक्ष्य का कनेक्शन किससे होना चाहिए? विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व से वो होना चाहिए। तो फैक्ट इन इश्यू जो है, विवादक जो डिस्प्यूटेड मैटर है, उनके एग्जिस्टेंस में होने या नहीं होने से रिलेटेड एविडेंस है वो होनी चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल है, विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व से संबंधित होना चाहिए साक्ष्य। दूसरी बात, हर परिस्थिति में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए, बेस्ट एविडेंस पेश की जानी चाहिए, बेस्ट एविडेंस पेश की जानी चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट कोई से कंसर्न है तो उसका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है या प्राइमरी एविडेंस है वो बेस्ट एविडेंस है, और यदि ऑरल एविडेंस है तो देन दैट ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जिसने उस तथ्य को घटित होते हुए देखा है, सुना है, महसूस किया है, ओपिनियन बनाई है, वो व्यक्ति आगे यदि कोर्ट में एविडेंस देता है तो वो क्या है? बेस्ट एविडेंस है। तो इसलिए हर परिस्थिति में साक्ष्य कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम साक्ष्य, बेस्ट एविडेंस है वो पेश की जानी चाहिए। अनुश्रुत साक्ष्य को जो है वो ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। सुना सुनाया साक्ष्य जो है, हियर से एविडेंस, उसको सामान्यतः क्या है? एडमिट नहीं किया जाना चाहिए, उसे ग्राह्य है वो नहीं बनाना चाहिए। ये 3 जो है वो साक्ष्य विधि के बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है वो प्रिंसिपल है। पार्ट फर्स्ट ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, चैप्टर फर्स्ट, टाइटल ऑफ द चैप्टर फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी and 2 sections cover under the chapter first and part first, section first and section second. What provided under section first? Short title, application and commencement. Short title of this act, application of this act upon the which proceedings, upon the which institutions, upon court, court martial or other institutions, and the date of the commencement. What is the short title of this act? The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is the short title of this act. It applies as per subsection 2 of the section 1. It applies to the all judicial proceedings in or before any court, including the courts martial, but not to affidavits presented to any court or officer, and nor
to the proceeding before an arbitrator. 4 point involved in the subsection 2. Provision of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 shall be applicable upon the judicial proceedings in or before the court and in or before the court martial. In or before the court and in or before the court martial. And provision of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 shall not apply upon the affidavits presented before the court or the public officer or officer, and the provision of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 shall not apply upon the proceeding before an arbitrator. Subsection 3 is concerned to the date of commencement of this act. It shall came into force on the such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. Central government exercise the power conferred under the subsection 3 of the section 1st, the which date appointed as the date of commencement of this act 1st July 2024. 1st July 2024 is the date of commencement of this act, which is appointed and fixed by the central government by issuing the notification in official gazette, exercising the power conferred under subsection 3 of section 1st. Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 applies upon the following proceeding: all judicial proceeding in or before any court. In or before any court, or in or before court martial. Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 does not apply upon the following proceedings, following documents: proceeding before an arbitrator, and not applies to affidavits presented to any court or officers. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का भाग फर्स्ट जो है उसमें एक ही चैप्टर कवर होता है, अध्याय फर्स्ट, और उसका टाइटल क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक जो है प्रिलिमिनरी इसका टाइटल, और केवल 2 धाराएं कवर होगी इस पार्ट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट के अंदर, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, जिसमें 3 बातें कवर होगी। एक इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, दूसरा ये अधिनियम कौन सी कार्रवाइयां पर लागू होगा, और तीसरी बात ये कौन सी तारीख से प्रारंभ होगा या लागू होगा ये अधिनियम जो है। सबसे पहली जो बात है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है वो क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही बात है। पहले क्या था? इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट था और हिंदी में क्या था? भारतीय साक्ष्य था। अब हिंदी में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और इंग्लिश में भी क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। टीचर्स के लिए भी कुछ काम आसान कर लिया, नहीं तो 2 अलग अलग बातें याद रखनी पड़ती थी। सबसेक्शन 2, ये पूरा जो है इसका क्रेडिट अमित शाह साहब को जाता है। यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष न्यायालय में या उसके समक्ष और सक्षम में कोई अंतर है क्या? क्या है? बस इतना ही तो फर्क है। इसमें सब पीछे था, इसमें बीच में आ गया, तो अंतर थोड़ा ही है। इस सक्षम का मतलब समर्थ से जो है, किससे है? कैपेबल से है। और ये जो समक्ष का मतलब, हाँ, सामने या के सामने, सामने या के सामने। किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों को ये जो है साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है वो लागू होता है, और जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी शामिल है। न्यायालय के समक्ष जो है या न्यायालय में सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, और जो सेना न्यायालय है उसके समक्ष भी सभी जो न्यायिक कार्रवाइयां हैं उन पर भी क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। कोर्ट मार्शल भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेना न्यायालय के समक्ष भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक कार्रवाई है, तो उस पर ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होंगे। किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को, और न ही किसी मध्यस्थ
के समक्ष की गई कार्रवाई को जो है वो लागू होता है। दो अलग अलग बातें बताई, दो तो पॉजिटिवली बताइए कि ये इस प्रकार की कार्रवाई उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होंगे। न्यायालय के समक्ष जो है वो सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है और सेना न्यायालय के समक्ष भी जो न्यायिक कार्रवाइयां हैं उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। और एक दस्तावेज और एक कार्रवाई उस पर ऐसे एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। वो किस पर? न्यायालय या लोक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर है क्या वर्ड? केवल ऑफिसर ही है ना। खैर ऑफिसर का मतलब पब्लिक ऑफिसर से ही है, प्राइवेट में तो कोई ऑफिसर माना ही नहीं जाता है, कितना भी बड़ा ऑफिसर है भी तो। न्यायालय या ऑफिसर, न्यायालय या अधिकारी जो है उसके समक्ष पेश किया गया जो शपथ पत्र है उस पर इस एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। और मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाई है, आर्बिट्रेटर के समक्ष कार्रवाई है, उस पर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 जो है उसके प्रोविजन है वो लागू होंगे, बट एविडेंस एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ऐसा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के सेक्शन 19 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 19 में भी इस तरीके का प्रोविजन है। प्रोविजन ऑफ सीपीसी एंड एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाइड अपॉन द प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर जो है सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऐसा प्रावधान उस एक्ट की धारा 19 में भी दे रखा है और यहाँ पर भी जो है वो सबसेक्शन 2 में एक्सप्रेस रूप से दे रखा है कि आर्बिट्रेटर के समक्ष जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है, माध्यस्थम की जो कार्रवाई है उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उस पर नेचुरल जस्टिस लागू होगा, रूल ऑफ फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी एटसेट्रा है वो लागू होंगे। बट वो आर्बिट्रल जो प्रोसीडिंग्स की पार्टीज है वो खुद कोई प्रोसीजर डिटरमाइन कर सकते हैं और वो प्रोसीजर डिटरमाइन करने में फेल रहते हैं, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड कर सकता है कोई प्रोसीजर है वो कौन सा लागू होगा उन पर। बट सीपीसी और एविडेंस के प्रोविजन उन पर लागू नहीं होते। ऐसी बात इसमें भी दे रखी सबसेक्शन 2 में। मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाई है वो कार्रवाई माध्यस्थम की कार्रवाई कहलाती है। उस कार्रवाई पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। सबसेक्शन 3, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा या लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। उपधारा 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई संसद के द्वारा कि केंद्र सरकार जो तारीख निर्धारित करेगी इस अधिनियम के लागू होने की प्रारंभ की, उस तारीख से यह एक्ट लागू होगा। और केंद्र सरकार ने जो है अपनी इस धारा 1 की उपधारा 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किस तारीख को, किस दिनांक को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की लागू होने की तारीख है वो घोषित की है 1 जुलाई 2024। और ये कॉमन डेट है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों एक्ट एक ही तारीख से लागू हुए हैं। कौन सी तारीख से? 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से। प्रीलिम्स में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस पे कमेंसमेंट की डेट पे, किसी तीनों में से किसी एक एक्ट पे। कुछ जजमेंट्स भी है। ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण 1956 सुप्रीम कोर्ट। Court held that the proceeding of contempt of court is a judicial in nature, though summary procedure is to be adopted in it, the provision of Evidence Act. Now the provision of BSA, Bharatiya Sakshya Adhiniyam, are not applied on the such proceeding. हमने पढ़ा तो ऐसा है कि सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लागू होता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले इस 1956 का जजमेंट है जिसमें इंटरप्रिटेशन ये किया कि ये पर्टिकुलर एक प्रोसीडिंग ऐसी है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, फिर भी इस पर बीएसए के प्रोविजन है वो लागू नहीं होते हैं और उसका रीजन भी बताया कि इस कारण से लागू नहीं होते हैं। ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण 1956 सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की है। न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अधीन है वो इनिशिएट की जाती है। वो जुडिशियल नेचर की कार्रवाई है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, न्यायिक प्रकृति की कार्रवाई है। फिर भी इसमें क्या है? समरी प्रोसीजर, संक्षिप्त प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान जो है इस प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होते।
ये इसका एक्सेप्शन है। जनरली ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या पुराना जो लॉ था इंडियन एविडेंस एक्ट वो लागू होता था, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई है ये जिसमें समरी प्रोसीजर अडेप्ट किया जाता है और उसमें एविडेंस एक्ट के प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होते हैं, या नया एक्ट जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसके प्रोविजन भी लागू नहीं होंगे। सुधा देवी वर्सेस MP Narayanan and others 1988 Supreme Court is the leading judgment in respect of the affidavits. Why provision of the Evidence Act does not apply upon the affidavits presented before the court or officer? Supreme Court explained in this judgment, court held that the affidavits are not included in the definition of the evidence in section 3 of the old act. Now the section 2 of the BSA and can be used as evidence. Affidavit are not included in definition of the evidence provided under section 2 of the new act or section 3 of the old act. Two things cover under the definition of the evidence: oral evidence and documentary evidence. And affidavits are not considered evidence within the meaning of the section 3 of the Indian Evidence Act. Therefore, the provision of Evidence Act does not apply upon the affidavits and can be used as evidence only if for sufficient reasons court passes an order under order 19 rule 1st or 2nd of the Code of Civil Procedure. Generally, the affidavits are not at all evidence, but if there is a reasoned order of the court under order 19 rule 1st or 2nd of the Civil Procedure Code, the court required from the plaintiff or defendant to prove that this particular fact or facts through the affidavits, and in such case in compliance of the order of the court affidavit is presented before the court, that affidavit is treated as evidence. That is the exception of the general rule that is provided under subsection 2 of the section 1st of Indian Evidence Act. In such case the affidavit is treated as evidence. Otherwise, what is the general rule? Affidavit is not covered under the definition of the evidence provided under Bharatiya Sakshi Adhiniyam or the old law Indian Evidence Act. सुधा देवी बनाम MP नारायणन एवं अदर्स 1988 सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि शपथ पत्र जो है, शपथ पत्र के लिए दूसरा शब्द क्या है? हल्फनामा भी यूज लिया जाता है। हल्फनामा भी शपथ पत्र का ही दूसरा नाम है, विदेशी शब्द है ये। शपथ पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा में शामिल नहीं। एविडेंस एक्ट जो पुराना लॉ था उसकी धारा 3 में एविडेंस की जो परिभाषा दे रखी थी, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसमें शामिल है। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दे रखे थे। फर्स्ट पार्ट में ओरल एविडेंस कवर हो रही है और सेकंड पार्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कवर हो रही है। तो उसमें कहीं पर भी शपथ पत्र है वो कवर नहीं हो रहा है। वो शपथ पत्र जो है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 और नया जो एक्ट है आपका BSA उसकी धारा 2, अब सारी डेफिनेशंस जो है वो सेक्शन 2 में इंक्लूड हो गई है। तो नए एक्ट में सेक्शन 2 नए एक्ट में सेक्शन जो 2 है उसमें जहां भी एविडेंस की डेफिनेशन दे रखी है उसमें ये एफिडेविट नहीं कवर होता है डेफिनेशन में। बट इसका उपयोग जो है, शपथ पत्र का उपयोग साक्ष्य के रूप में एक्सेप्शनली किया जा सकता है। अपवादित परिस्थितियों में शपथ पत्र भी साक्ष्य की परिभाषा में या साक्ष्य की श्रेणी में आ सकता है। वो कब? यदि पर्याप्त कारणों से जो है न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 के नियम 1 या 2 के अंतर्गत जो है आदेश पारित करता है। CPC के आदेश 19 के नियम 1 और 2 सबअधिक धारा 30 CPC यदि कोर्ट ऑर्डर करता है कि ये विशेष तथ्य या जो विशेष तथ्यों हैं इनको शपथ पत्र के माध्यम से साबित किया जाए, कोर्ट इस तरीके का डायरेक्शन देता है, ऐसा ऑर्डर पारित करता है। आदेश 19 के नियम 1 और 2 सबअधिक धारा 30 CPC, सेक्शन 30 CPC में भी कोर्ट के पास जो है वो क्लॉज C में इस तरीके का ऑर्डर देने की पावर है। तो कोर्ट ने यदि उस अपनी CPC की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऑर्डर दिया, उस आदेश की अनुपालना में वादी या प्रतिवादी जो है शपथ पत्र के माध्यम से किसी तथ्य को है वो साबित करता है या उस तथ्य के साबित करने के प्रयोजन के लिए शपथ पत्र पेश करता है, तो वो शपथ पत्र साक्ष्य की श्रेणी में आ सकता है, उसको वो साक्ष्य माना जा सकता है। सामान्य नियम तो ये कि ये साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है, बट जहां स्पेशल लॉ में या CPC में कहीं प्रोविजन दे रखा है तो वहां
या जो है वो शपथ पत्र भी साक्ष्य की श्रेणी में आ सकता है। जैसे एनआई एक्ट में सेक्शन 145 में इस तरीके का प्रोविजन है। कंप्लेनेंट जो है वो अपनी एविडेंस एफिडेविट पे दे सकता है। परिवादी जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोग्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 145 में परिवादी अपना साक्ष्य शपथ पत्र में दे सकता है, तो वो स्पेशल लॉ का प्रोविजन है। तो उस केस में भी वो एफिडेविट क्या है, एविडेंस के रूप में ट्रीट हो सकता है, एविडेंस माना जाएगा। बट जो अदरवाइज जो है कोई स्पेशल लॉ में ऐसा प्रोविजन ही नहीं हो, सीपीसी में कोई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर ही नहीं किया हो, तो क्या शपथ पत्र जो है वो साक्ष्य की श्रेणी में आता है? नहीं, शपथ पत्र साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। और शपथ पत्र यदि पेश किया गया तो उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू भी नहीं होंगे। सेक्शन 2 में जो है सेक्शन 3 और 4 दोनों इंक्लूड हो गए। 4 में जो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, उनकी डेफिनेशंस थी, वो भी इस सेक्शन 2 में कवर हो गई है। ओल्ड लॉ का सेक्शन 3 और 4 दोनों कवर हो गए। कुछ हो सकता है नई डेफिनेशंस भी मिल सकती है आपको। सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2, इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ 2(1)(a), not directly 2(a), 2(1)(a). In 2(1)(a), the term court is defined. Court includes the all judges and magistrate and all person except arbitrator legally authorized to take evidence. Inclusive definition is provided. Court includes the all judges and magistrates and also includes the all persons legally authorized to take the evidence except arbitrator. Arbitrator is not covered under the definition of the court. Except arbitrator, all person authorized to take evidence, legally take the evidence, or all judges or magistrate included in the definition of court. धारा जो 2 है नए एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये पुराना जो आपका अधिनियम है उसकी धारा 3 और धारा 4 ये दोनों कवर होगी इस वो धारा 2 के अंदर। पुराने एक्ट की धारा 2 तो क्या थी, ओमिट थी। क्या थी? एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन जो 2 था वो ओमिट हो गया था 1938 में। कब? 1938 में ओमिट हो गया था वो। और नया जो एक्ट है अब इसमें जो है वो सेक्शन 3 और 4 दोनों जो है वो सेक्शन 2 में वो इंक्लूड हो गए। सेक्शन 4 की जो डेफिनेशन थी, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चयक सबित, वो भी जो है वो इस धारा 2 के अंदर है वो शामिल कर ली गई है। तो दोनों धाराएं, धारा 3 और 4 की परिभाषाएं एक ही धारा में, धारा 2 में डाल दी गई है। पुरानी जो धारा 3 था एविडेंस एक्ट का, उसमें क्लॉज नहीं थे, डायरेक्ट डेफिनेशन थी और कोई एबीसीडी भी नहीं थी, कोई एबीसीडी भी नहीं था, डायरेक्ट सेक्शन 3 से काम चल जाता था हमारा। बट अब सब सेक्शन भी है वो डालना है आपको, और उसके बाद उसका क्लॉज भी है एबीसीडी में से, वो भी याद रखना है आपको। परिभाषाएं, जबकि जो पुराना आपका एक्ट था उसका सेक्शन 3 का टाइटल क्या था? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या था? इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसको चेंज किया, इसमें क्या किया? डेफिनेशंस, परिभाषाएं जो है इसका टाइटल है वो दिया है। उपधारा 1 देखेंगे आप, इस अधिनियम में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सबसे पहले 2(1) क में, 2(1) क के अंदर जो है वो न्यायालय को परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषा है न्यायालय की? न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट शामिल है, तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति भी जो है वो क्या है? न्यायालय शब्द में आते हैं या न्यायालय शब्द में शामिल है। 3 बातें न्यायालय में शामिल की गई है, समावेशी परिभाषा है ये। सभी न्यायाधीश न्यायालय शब्द में शामिल है, सभी मैजिस्ट्रेट न्यायालय शब्द में शामिल है, और सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं सिवाय मध्यस्थ के। मध्यस्थ कोर्ट की परिभाषा में कवर नहीं होगा। आर्बिट्रेटर को भी एविडेंस लेने की पावर है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में, वो भी है वो एविडेंस ले सकता है। सेक्शन 23, 24, 25 वगैरह पढ़ेंगे आप आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में। तो जो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी जो है उनके द्वारा पेश होने वाली जो एविडेंस एट सकता है, उनकी ऑरल एविडेंस जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है आर्बिट्रेटर। बट इस एक्ट के पर्पज के लिए जो है मध्यस्थ न्यायालय की परिभाषा में कवर नहीं होगा। मध्यस्थ के छोड़कर
एबो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति जो है, ये विधि द्वारा प्राधिकृत तो एबो मध्यस्थ के सिवाय और कौन हो सकता है? कमिश्नर हो सकता है। कौन? कमिश्नर। कमीशन जब जारी किया गया है, जिसको भी डायरेक्ट किया गया है, जिस एबो एडवोकेट को जारी किया गया है, जिस पर्सन को जारी किया गया, वो कमिश्नर भी जब कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस में वो एविडेंस जो है वो लेता है, तो वो कोर्ट की परिभाषा में कवर होगा। वो क्या होगा? वो भी न्यायालय की परिभाषा में जो है वो कवर होगा। बट मध्यस्थ जो एविडेंस लेता भी है, मध्यस्थता में हम सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यस्थता कार्रवाई में, उसके बावजूद भी वो क्या है, वो जो है कोर्ट की परिभाषा में या न्यायालय की परिभाषा में जो कवर है वो नहीं